یہ نقشہ ہے عرش الہی کا. اس نقشے میں 7 کرسیاں رکھی ہیں. کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 7 کرسیاں. ایک نہیں ہے، 7 ہیں. اور یہ 7 کرسیاں، ایک ایک کرسی کے اوپر ایک ایک سلطان بیٹھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اللہ کی ذات کو پریکٹیکلی ثابت کریں گے، تو آئیے آج ہم اللہ کی ذات کو پریکٹیکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، یعنی جسم اللہ کی ذات میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب جسم نہیں تو پھر اللہ کی ذات صورت سے بھی پاک ہے، کیونکہ صورت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. تو جب اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، یعنی جسم نہیں پایا جاتا، تو صورت بھی نہیں پائی جاتی. اسی طریقے سے اللہ کی ذات عرض سے پاک ہے، جوہر سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، اور ایسے ہی دخول سے پاک ہے، حلول سے پاک ہے. ناظرین، اگر ان کو ایک ایک کھول کھول کر کے بیان کیا جائے تو وقت اجازت نہیں دیتا، اور جو ہے ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے. اس لیے ان تمام کو ہم اختصاراً آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق. اللہ کی ذات خالق ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. سب سے پہلے ہم ان میں سے جسم کو لے لیتے ہیں. ناظرین، جسم کے سلسلے میں دنیا میں ہر چیز جسم والی ہے. آسمان کا جسم ہے، زمین کا جسم ہے، اور ایسے ہی درختوں کا جسم ہے، نباتات کا جسم ہے. دنیا میں جو بھی چیز آپ لیں گے ہر چیز جسم والی ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہم سب یکساں ہیں. جب ہر چیز جسم والی ہے تو ہم نے پڑھا ہے جو بھی جسم ہوگا اس پر 2 حالتیں طاری ہوں گی، یعنی 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں جسم ضرور ہوگا. جسم یا تو حرکت میں ہوگا یا سکون میں ہوگا. لیکن یہاں پر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، سکون سے مراد وہ دل کا سکون نہیں، بلکہ سکون کا مطلب ہے ایک جگہ پہ رکا ہوا ہوگا. یا تو جسم، آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ جسم ہے، اور جسم جو ہے یا تو حرکت میں ہے یا سکون میں ہے، اور سکون کا مطلب ہے رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں آپ جو بھی جسم لوگے ہر جسم یا تو حرکت میں ہوگا یا سکون میں ہوگا، اور ہر حرکت کو سکون فنا کرنے والا ہے، اور ہر سکون کو حرکت فنا کرنے والا ہے. سمجھ لیجئے گا بات کو. ہم تصور کرتے ہیں کہ کوئی بھی جسم اگر رکا ہوا ہے تو وہ تب تک رکا ہوا ہے جب تک کہ اس پر حرکت طاری نہ ہو. یہ دیکھ لیجئے، مثال کے طور میرے پاس قلم ہے، یہ قلم ابھی تک رکا ہوا ہے. جو ہی اس پر حرکت ہم نے طاری کی تو اس حرکت نے اس سکون کو فنا کر دیا، اور جو ہی جسم پر سکون طاری ہوتا ہے تو اس کی حرکت فنا ہو جاتی ہے. بات کو ذرا سمجھنا مشکل ہے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جسم یا تو رکا ہوا ہوگا یا سکون میں ہوگا، یا حرکت میں ہوگا، اور ہر حرکت کو سکون فنا کرنے والا ہے، اور ہر سکون کو حرکت فنا کرنے والی ہے. سمجھ لیجئے گا بات کو. اور حرکت اور سکون یہ دونوں جو ہے جسم پر طاری ہوتی ہے، یعنی یہ حالتیں ہیں. یا تو حرکت میں ہوگا، یہ حرکت حالت ہے، اور سکون جو ہے یہ بھی حالت ہے. اگر حرکت والی حالت جو ہے جسم پر ہے تو جسم حرکت میں ہے، اور اگر سکون والی حالت جسم پر ہے تو جسم جو ہے سکون میں ہے، یعنی رکا ہوا ہے. اور ناظرین، ہم سب جانتے ہیں حرکت بھی فنا ہونے والی ہے اور سکون بھی فنا ہونے والا ہے. تو لہٰذا جس چیز پر یہ حاوی ہوتے ہیں، جس چیز پر یہ طاری ہوتے ہیں، وہ خود بخود فنا ہونے والا ثابت ہو گیا. پھر سے ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش کر لیں. مثال کے طور ایک بم ہے. اس بم کا کام کیا ہے؟ یہ بم جس پر طاری ہوتا ہے اس کو فنا کر دیتا ہے. یہ بم
जिस भी जिस्म पर तारी होता है, जिस जिस्म पर फेंका जाता है, वो जिस्म फना हो जाता है। तो इससे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जिस्म तभी फना होता है जब पहले ये बम खुद फना होने वाला हो। जब तक ये बम फना नहीं होता तो ये जिस्म कभी फना नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस बम की वजह से जो ये जिस्म खुद फना हो रहा है, ये बम भी जो है इसके लिए भी हमें फ़ना मानना पड़ेगा जब तक कि ये खुद फ़ना होने वाला ना हो। और जब ये खुद फ़ना होने वाला साबित हो गया तो यकीनन जिस पर ये पड़ जाएगा वो भी फ़ना होने वाला होगा। एक और आसान सी मिसाल से मैं आपको समझा दूं। हम गाड़ी को हरकत देने के लिए तेल डालते हैं, ठीक है। ये जो हमने तेल गाड़ी में डाला, इस तेल की वजह से जो गाड़ी सुकून में थी यानी रुकी हुई थी, इस तेल ने उस सुकून को फना कर दिया, यानी गाड़ी को हरकत दे दी। तो इस तेल की वजह से जब ये तेल इस गाड़ी पर जो है तारी हो गया, यानी इस गाड़ी में हमने इसको इस्तेमाल किया, तो इस तेल की वजह से इस गाड़ी का जो सुकून था, यानी ये जो गाड़ी रुकी हुई थी, इस गाड़ी की जो है हरकत सुकून फना हो गया। तो जिस चीज़ पर जिस्म के लिए हमने जो है दो हालतें मानी, या तो आप तीसरी हालत साबित करें, मैं अपना जो है ये पूरी की पूरी जो है मैं इससे इनकार दस्तबरदार हो जाऊंगा, या तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि जिस्म पर दो ही हालतें हो सकती है, या तो वो रुका हुआ होगा या जो है हरकत में होगा। अगर हरकत में है तो इस हरकत को सुकून फना करने वाला है, अगर सुकून में है तो उस सुकून को हरकत फना करने वाली है। और जिस्म पर ये दोनों चीज़ें जो है हावी होती है, और जब ये खुद फना होने वाली है, जिस पर हावी हो जाए, जिस पर तारी हो जाए, वो जिस्म खुद ब खुद फना होने वाला साबित हो गया। समझ लीजिए बात को। अगर हमने अल्लाह की ज़ात के लिए जिस्म को तसव्वुर किया, तो चूँकि हमें ये मानना पड़ेगा कि जिस्म जो है या तो जिस्म रुका हुआ है, हमें मानना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह की ज़ात के लिए जिस्म तसव्वुर करते हैं तो ये तो यकीनी होगा, या तो अल्लाह की ज़ात रुकी हुई होगी या हरकत में होगी, और हरकत और रुका हुआ होना ये फ़ना होने वाली है, तो इससे अल्लाह की ज़ात फ़ना होने वाली साबित हो गई। तो लिहाजा ये बात इस से साबित हो गई कि अल्लाह की ज़ात जो है जिस्म से बिल्कुल पाक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और दूसरे नंबर पर हमने ली थी सूरत। जब अल्लाह की ज़ात जिस्म से पाक है, यानी जब जिस्म ही साबित नहीं हुआ तो सूरत किस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। ऐसे ही जौहर और अर्ज़, जौहर और अर्ज़ में क्या आता है, यानी अल्लाह की ज़ात को हम किसी महदूद जगह में तसव्वुर नहीं कर सकते। महदूद जगह का मतलब क्या है, ये सर्कल ले लीजिए, ये आलम है, आलम का मतलब दुनिया। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कुरान करीम के अंदर या दीगर किताबों में या फ़िलासफ़ी के नज़दीक वो भी कहते हैं कि आलम फ़ना होने वाला है, और आलम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ फ़ना होने वाली है। अगर हम इस आलम के अंदर जिस सर्कल में हमारा दिमाग घूमता है, जिस सर्कल में हमारा दिमाग काम करता है, अगर हम अल्लाह की ज़ात को भी इसी सर्कल में तसव्वुर करेंगे तो उस आलम में अल्लाह की ज़ात भी आ गई, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का फ़ना होना साबित हो जाएगा। अगर अल्लाह की ज़ात इस सर्कल से बाहर है तो जो लोग इस सर्कल में रहते हैं उन लोगों के लिए अल्लाह की ज़ात को समझना अल्लाह ताला ने इसके लिए इसका मुकल्लफ नहीं बनाया। हम जब इस सर्कल में हैं तो हमें इसी के अंदर अंदर इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया है। जो इस सर्कल के बाहर है, जब हमारी ताकत ही नहीं, हमारी वसाअत ही नहीं कि हम इस सर्कल से बाहर जा सकें, तो उस सर्कल से आगे अल्लाह की ज़ात कैसी है, क्या है, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात किसी सिमत में नहीं है। मैं शॉर्टली आपको समझा दूं, ये सिमत जो है मशरिक़, मगरिब, शमाल, जुनूब, ये सिमतें अल्लाह ताला ने बनाई। अगर हम ये कहेंगे अल्लाह ताला किसी ख़ास सिमत में है, जब अल्लाह ने ये सिमतें नहीं बनाई थी तब कहाँ थी? समझ में आ रही बात? अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह किसी मखसूस सिमत में है, तो ये मानना पड़ेगा जब सिमतें अल्लाह ने नहीं बनाई थी तब तो अल्लाह उस जगह पे नहीं थे। मान लीजिए आपका तसव्वुर यह है कि अल्लाह मशरिक़ में है, ठीक है। जब अल्लाह ने मशरिक़ बनाया तब तो मशरिक़ में नहीं थे, तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का हरकत में आना साबित हो गया। और हमने ऊपर उसूल पढ़ा कि अल्लाह की ज़ात जो है हरकत और सुकून से पाक है। अगर हम ये तसव्वुर करें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात किसी मखसूस सिमत में है, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का फ़ना होना साबित होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जहत यानी अर्श पर है, जैसा कि कुरान करीम की आयत का बहुत गलत, अक्सर उसका तर्जुमा गलत किया जाता है कि अल्लाह की ज़ात अर्श पर है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ठीक है।
नाजरीन, सुम्मस्तवा अलल अर्श, और हमेशा हम अर्श को ऊपर तसव्वुर करते हैं। समझ लीजिएगा बात को। जब भी हम अर्श कहते हैं तो अर्श से जो है हमारा तसव्वुर ऊपर को चला जाता है कि अर्श ऊपर है। तो अर्श को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करें। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ये सारी की सारी चीज़ें सिमत और जिहत में आती हैं। यानी मशरिक, मगरिब, जुनूब, शुमाल, ऊपर, नीचे, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की है और एक इंसान के लिए पैदा की है। ठीक है। हम हमेशा ये तसव्वुर करते हैं कि आसमान हमारे सर के ऊपर है और ज़मीन हमारे पाँव के नीचे है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिमत मुतअय्यन नहीं है, इंसान को समझाने के लिए है। कैसे? मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं। ये हमारे घर की छत है। इस छत पर जो है एक चूंटी उल्टी चल रही है इस तरीके से। अब ये जो चूंटी है, अगरचे हमारे लिए अर्श ऊपर है, लेकिन जब इस चोटी के बारे में तसव्वुर किया जाए जो हमारे घर के छत के ऊपर बिल्कुल उल्टी चल रही है, उसके लिए अर्श जो है उसके पाँव के नीचे है और ज़मीन उसके सर की तरफ है। समझ लीजिएगा बात को। जबकि हमारे लिए ये है कि हमारे सर के ऊपर अर्श है और हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है। तो पता चलता है दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात ऐसी भी है जिनके लिए अर्श नीचे है और ज़मीन ऊपर है। तो लिहाजा ये ऊपर और नीचे का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया कि अल्लाह की ज़ात ऊपर अर्श पर है और जो है हम नीचे हैं। क्योंकि ऊपर और नीचे ये इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है। इस मखलूक से अल्लाह, इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात से हमें ये बात सामने आ रही है कि बहुत सारी मखलूक़ात ऐसी है जिनके पाँव की तरफ जो है अर्श आ रहा है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम अर्श की तरफ हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ क्यों मांगते हैं? तो नाज़रीन, अर्श की तरफ हाथ उठा करके हम ये साबित करते हैं कि अल्लाह की ज़ात बुलंद व बाला है। हम ज़मीन की तरफ भी हाथ करके दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में भी अल्लाह है। दाएं तरफ भी हाथ करके दुआ मांग सकते हैं, दाएं तरफ भी अल्लाह है, बाएं तरफ भी अल्लाह है, हर तरफ अल्लाह है। तो लिहाजा ऊपर की तरफ हाथ करके हम अल्लाह की ज़ात को बुलंद जो है तसव्वुर करते हैं। जैसे कि आपको पता है, गंदी नाली में रहने वाले कीड़े भी अल्लाह ने पैदा किए, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते, जब हम अल्लाह का तारुफ करते हैं तो हम ये कभी नहीं कहते कि हमारे अल्लाह वो है जिसने गंदी नाली के कीड़े पैदा किए। हम कभी नहीं कहते हमारे अल्लाह वो है जिसने सुअर पैदा किया, जबकि हकीकत है अल्लाह ने गंदी नाली के कीड़े भी पैदा किए। अल्लाह ने जो है सुअर, खंजीर को भी पैदा किया, कुत्ते, बिल्ली को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। लेकिन जब अल्लाह के तारुफ की बात आती है, हम अल्लाह की बड़ी बड़ी चीज़ों को जो है बयान करते हैं। हमारे अल्लाह वो हैं जिसने आसमानों को बनाया, जिसने ज़मीन बनाई, जिसने जो है बड़े बड़े पहाड़ बनाए, जिसने अर्श बनाया, जिसने सिदरतुल मुंतहा को बनाया। जबकि छोटी छोटी चीज़ें भी जो दुनिया में गंदी तस्वुर की जाती है वो भी अल्लाह ने पैदा की, लेकिन उनको मिसाल में ला करके हम कभी अल्लाह का तारुफ नहीं कराते। तो नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो ऊपर की तरफ हाथ उठा करके दुआ मांगते हैं, हम ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह की ज़ात बुलंदी को पसंद करती है, अल्लाह की ज़ात बुलंद व बाला है, वरना अल्लाह की ज़ात हर जगह पर है। तो ये तो था सिमत सुम्मस्तवा अलल अर्श का मतलब। दुखूल और हुलूल का मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात न पानी, आटे में पानी की तरह किसी चीज़ में हुलूल किए हुए हैं, न गिलास में पानी की तरह किसी चीज़ में दुखूल किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह की ज़ात किसी चीज़ में आटे की तरह, जैसे पानी आटे में हुलूल होता है, मिल जाता है, अगर अल्लाह की ज़ात किसी और चीज़ के साथ तस्वुर की जाए तो फिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात हमेशा से नहीं है, फिर वो चीज़ जिसमें अल्लाह की ज़ात का दुखूल है या हुलूल है, उस चीज़ को भी हमेशा से है और हमेशा आपको जो है मानना पड़ेगा, जो बिल्कुल बातिल है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कैसे है, अल्लाह की ज़ात किस हाल में है, तो ये एक सर्कल है जिस सर्कल में अल्लाह की तमाम तर मखलूक़ात हैं, और ये पूरा सर्कल लेकर के जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की है, हर चीज़ अल्लाह की पैदा करदा है। अल्लाह की ज़ात इससे पहले कहाँ थी? इस सर्कल से बाहर थी। यानी हम इस ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सर्कल के अंदर अंदर की चीज़ों को जान सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़्यादा से ज़्यादा इंसान के लिए इतना ही इल्म जो है दिया है इंसान को। इससे बाहर हमें जो है अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
کیونکہ ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں یہ حکم دیا کہ تمہیں یہ جاننا پڑے گا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے, زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے, یا آسمان کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں, عرش کس چیز کا بنا ہوا ہے, عرش پر کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کا مکلف بالکل بھی نہیں بنایا گیا. ہمیں بس اللہ کی ذات کو ماننا ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے, اس کی شکل کیا ہے, جیسے اس کی شایان شان ہے. ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا کی جتنی بھی تمام چیزیں ہیں, جس میں عرش بھی ہے, سدرۃ المنتہا بھی ہے, کرسی بھی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. اور ہمارا ماننا ہے یہ جب چیزیں اللہ نے پیدا نہیں کی تھی, اللہ کی ذات تب بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تو ناظرین, یہ تھی وہ چیزیں جن چیزوں سے اللہ کی ذات پاک اور مبرہ ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کو جاننے سے پہلے, اللہ کی وحدانیت کو جاننے سے اور سمجھنے سے پہلے ان چیزوں سے اللہ کی ذات کو پاکیزہ ثابت کرنا ضروری تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے. اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور اس میں ہم اللہ کی ذات کا ابدی ہونے کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.